Hello everyone. Today we will discuss regarding first topic of the part B of the paper 1, that is definition of anatomy and branches of the anatomy. First we will discuss regarding definition of the anatomy. As you know, definition of the anatomy is the science which deals with the structure of the body from macroscopic to microscopic. Okay, it means it is the science which deals with the structure of the body from macroscopic, which can be seen by the naked eye or gross anatomy, and study of microscopic or parts that cannot be seen by the naked eye, or cells of the body or very minute parts of the body. In short, anatomy is the science which deals with the structure of the body from macroscopic to microscopic. Derivation of the word anatomy: in the Greek word anatomy meaning to cut up. The term dissection is the Latin equivalent of the Greek term anatomy, and another one, ana means continuous and tomy means dissection. Okay, initially anatomy was studied mainly by dissection, but the scope of modern anatomy has become very wide because it is now studied by all possible techniques which can be enlarged the boundaries of the anatomical knowledge. Okay, इन शॉर्ट मतलब यही कहना चाह रहा है कि फर्स्ट only anatomy was studied for the purpose of only dissection, but as the scope increases, anatomy can be studied for anatomical research, etc. Okay, the main subdivision of the anatomy. Okay, अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि राइट अबाउट द सब डिविजन ऑफ द एनाटॉमी, एट द टाइम you have to write same regarding the branches of the anatomy. Okay, branches of the anatomy and subdivision of the anatomy both are the same. Okay, mind it. First branch of the anatomy is cadaveric anatomy. Cadaver. Okay, first हम वर्ड पे जाते हैं, cadaver. Okay, cadaveric anatomy is studied on dead, embalmed or preserved bodies, usually with the naked eye, microscopic or gross anatomy. Okay, यहाँ पे कैडेवर और डेथ बॉडी, यहाँ पे आपको ये दो वर्ड के मीनिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए. जब तक हम बॉडी को एम्बाल्व नहीं करते, एम्बाल्व और प्रिजर्व नहीं करते, तब तक उसे हम डेथ बॉडी कहेंगे. बट आफ्टर प्रिजर्वेशन ऑफ द डेथ बॉडी इट विल बी टर्म एज कैडेवर. ओके, सो व्हाट इज कैडेवरिक एनाटॉमी? इट इज एनाटॉमी is studied on the dead, embalmed bodies, usually with the naked eye, that is microscopic or gross anatomy. Okay, again it is further subdivided into regional and systemic anatomy. Here microscopic anatomy, same cadaveric anatomy or gross anatomy. In that first regional anatomy, it can be मतलब रीजन का मीनिंग कोई भी एक एरिया. तो हम रीजनल एनाटॉमी में मतलब हेड, नेक, ब्रेन, थोरेक्स, एब्डोमिन, अपर लिम, लोअर लिम एरिया वाइज स्टडी करते हैं. सो इट इज टर्म एज रीजनल एनाटॉमी. ओके, दिस कैन बी डन बाय वन ऑफ द टू अप्रोचेस. इन रीजनल एनाटॉमी द बॉडी इज स्टडीड in the parts like upper limb, lower limb, thorax, abdomen, head, neck, brain, etc. that we have seen in the diagram. मतलब कि इन रीजनल एनाटॉमी हम कोई भी एक एरिया के हिसाब से स्टडी करेंगे. इन दैट मतलब कि अपर लिम, लोअर लिम, थोरेक्स में भी रीजन में पर्टिकुलर जाते हैं तो पेक्टोरल रीजन, शोल्डर रीजन, बैक ऑफ द मसल्स ऑफ द बैक, एटसेट्रा, ग्लूटियल रीजन, एटसेट्रा. ओके, सो हम रीजनल एनाटॉमी में कोई एक एरिया की स्टडी करते हैं, उस पार्ट की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. सो इट इज टर्म एज रीजनल एनाटॉमी. सेकंड वन इज सिस्टमिक एनाटॉमी. द बॉडी इज स्टडीड इन द सिस्टम लाइक द skeletal system, that is osteology, muscular system, that is myology, articulatory system, that is arthrology, and syndesmology, that is study of the ligament. Okay, vascular system, that is angiology, nervous system, that is neurology, respiratory, digestive, urogenital and endocrine system. Okay, मतलब कैडेवरिक के फर्दर सब डिवीज़न
देर आर रीजनल एंड सब सिस्टेमिक. सिस्टेमिक मतलब कि सिस्टम वाइज. ओके. मायोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एंजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एट्सेट्रा. ओके. First, this is the diagram of regional anatomy. Pectoral region, sternal abdominal region, umbilical inguinal region. Okay, so by this way we can study of the particular region of the body. It can be considered in the it is considered in the regional anatomy. Whereas systemic anatomy, in the first diagram you can see circulatory system. Okay, study of the circulatory system. Then second one is nervous system, third one is respiratory system, fourth one is digestive system, fifth one is skeletal system, then last one is muscular system. Okay, again here endocrine system. Endocrine system up to 12 you might have studied regarding antasai granthi etc. It means endocrine, exocrine gland. What is endocrine and exocrine? एंडोक्राइन मतलब डायरेक्ट उसके जो हॉर्मोन्स रहते हैं ब्लड के अंदर डिस्चार्ज होते हैं और डायरेक्ट ही ब्लड के हॉर्मोन्स डायरेक्ट ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं. और एक्सोक्राइन वो डक्ट रहती है. ओके, डक्ट जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो डक्ट के थ्रू ब्लड के अंदर डिस्चार्ज होते हैं. सो इन शॉर्ट one endocrine and exocrine, duct or ductless. Okay, just that we will discuss in the detail in the endocrine system. Just it was regarding introduction. Now urogenital. Okay, uro matlab KUB, urinary system, kidney, ureter and bladder. Okay, KUB and urogenital, that is male and female. Okay, so I have considered both male genital organ and female genital organ. So in this urogenital system, both male and female urinary system as well as reproductive system can be considered. Okay, so first one was regarding cadaveric anatomy. In this further subdivisions are regional and systemic anatomy. Now we will study regarding living anatomy. Living anatomy is studied by inspection. Living मतलब all live person. Okay, live person पे living anatomy is studied by the inspection, palpation, percussion, auscultation, endoscopy, bronchoscopy, gastroscopy, radiography, electromyography etc. मतलब कि हम सभी लाइव पर्सन पे जो कोई भी स्टडी करता है, इंस्पेक्शन से लेके इलेक्ट्रोमायोग्राफी एट्सेट्रा, ECG एट्सेट्रा, all these things are considered in the living anatomy. Okay, so first one is inspection. मतलब कि अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है जॉइंटिस का, तो आपको उसके पेलनेस ऑफ द फेस, स्किन, आइज एट्सेट्रा से आपको पता चलता है ड्यू टू जॉइंटिस ही मे बी सफरिंग फ्रॉम द जॉइंटिस. अगेन another example, ascites. If patient come with the enlargement of the abdomen, so just you can diagnose roughly, you can diagnose that he or she may be suffered from the ascites or etc. Okay, then palpation. palpate मतलब palpate करना. ये स्टडी palpation etc. method you will study in the medicine subject in detail. But just now अंडरस्टैंड इट. पाल्पेशन मतलब कि यहाँ पे पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमिन इमेज के ABCD के इमेज के वाइज है. तो पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमिन मतलब कि 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमिन है. हमारे एब्डोमिन में 9 रीजन्स हैं. 9 रीजन में भी स्पेसिफिक रीजन में पर्टिकुलर फिक्स ऑर्गन रहते हैं. ओके, मतलब कि कोई भी अम्बिलिकल रीजन है तो उसके बिलो एब्डोमिनल एओर्टा एट्सेट्रा वी कैन सी. तो मतलब कि जो 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमिन है उसके स्पेसिफिक रीजन के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन फिक्स ऑर्गन रहते हैं. तो मतलब हम पाल्पेशन करते हैं. कई बार पेशेंट आपके पास आता है कि सर मुझे एब्डोमिन में पेन है, तो आप उसको लेटा के इस तरह से पाल्पेशन करोगे क्लिनिक के अंदर. तो एक
एक पाल्पेशन करते वक्त आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उसको पेन है, सो फिर आप वहाँ पे लॉजिक लगाओ कि इन दिस रीजन देयर मे बी अपेंडिक्स, सो ही मे बी सफरिंग फ्रॉम appendicitis or etc. Okay, so it is the importance of palpation. Then percussion. Again, percussion method you will study in the medicine in detail, but just by this way we can do percussion. सपोज एग्जांपल प्लूरल फ्यूजन वाला पेशेंट है आपके पास, कोई भी आप हॉस्पिटल में जाते हो और पेशेंट देखते हो तो प्लूरल इफ्यूजन वाला पेशेंट है, तो आप चेस्ट पे इस तरह से परकशन करते हो तो आपको डल, रेजोनेंट इस तरह के साउंड आइडेंटिफाई करने रहते हैं कि डल साउंड, रेजोनेंट साउंड, और इस तरह से आपको फिजिशियन को बताना रहता है. ओके, सो इट कैन बी इंक्लूड इन percussion. Okay, by this method we can do percussion. Okay, just अभी इतना याद रखो, इसको percussion कहते हैं. Now last one is auscultation, that is stethoscope से आप जो heart sound etc सुनते हो, it is considered in the auscultation. Then endoscopy. Okay, endoscopy मतलब देखो, एंडोस्कोपी माउथ और एनस दोनों ओपनिंग, मतलब कोई भी एक ओपनिंग से एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा विजुलाइज इस तरह से स्क्रीन पे विजुलाइज करते हैं, और किस प्रकार की पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कुछ एबनॉर्मलिटी है, तो हम इस तरह से डायग्नोस और आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बाय दिस वे एंडोस्कोपी स्कोप मतलब अवकाश. ओके, सो माउथ और एनस कोई भी एक एरिया से ओपनिंग से हम एंडोस्कोप इंसर्ट करेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा विजुलाइज होता है स्क्रीन पे. सो बाय दिस वे कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, अदरवाइज एबनॉर्मलिटी हो, इट कैन बी डिटेक्टेड. ओके, सो लास्ट वन इज gastroscopy, SAM, radiography, X-ray etc. all you know. Electromyography, this is new terminology for you. Electromyography. So electro, as you know, myo मतलब muscle, graphy. Okay, by this way electromyography can be performed. Okay, electromyography मतलब myo मतलब muscle, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस बाय द मसल, उसको हमें ग्राफ मतलब रिकॉर्ड करनी है, तो हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी की मदद से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. इन शॉर्ट, इट इज़ एन इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक मेडिसिन टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग एंड रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस बाय द स्केलेटल मसल्स. देखो मैंने यहाँ पे रेड मार्क से हाईलाइट किया है, वही इतना ही आप याद रखोगे तो भी चलेगा. रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस बाय द स्केलेटल मसल, और उसका इम्पोर्टेंट क्या है बाद में उन्होंने इससे बताया कि इलेक्ट्रोमायोग्राफ से आप उसको मेज़र करते हो, रिकॉर्ड करते हो, और जो पूरा रिकॉर्डेड रहता है ग्राफ उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमायोग्राम. इसका आपको यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन रिस्पॉन्स टू नर्व स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स, मतलब कि कई बार मसल की स्टिमुलेशन देखनी रहती है, तब इट विल बी हेल्पफुल. द टेस्ट इज़ यूज टू हेल्प डिटेक्ट न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़. ओके, जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ है वहाँ पे इलेक्ट्रोमायोग्राफी विल बी हेल्पफुल टू डायग्नोस. ओके, ड्यूरिंग द टेस्ट वन और मोर स्मॉल नीडल्स आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स आर इंसर्टेड थ्रू द स्किन इनटू द मसल, मतलब कि मसल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है उसको इंसर्ट करेंगे. इन शॉर्ट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस बाय द मसल्स और स्केलेटल मसल्स, उससे रिकॉर्ड करने के लिए हम करते हैं. और क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट और टू डिटेक्ट एनी न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटी और टू नर्व रिस्पॉन्स. ओके, देन एम्ब्रियोलॉजी. ओके, हर शब्द के पीछे वहाँ पे लॉजी मतलब स्टडी. ओके, स्टडी आता है, लॉजी एम्ब्रियोलॉजी
living anatomy, oncology, okay, it's histology, etc. So logy means study of anything or specific embryo. Embryology, developmental anatomy, is the study of prenatal developmental changes in an individual. मतलब क्या कहना चाहता है? Developmental anatomy is the study of prenatal developmental changes in an individual. मतलब कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से लेके फर्टिलाइजेशन एग, बाद में फीटस, अप टू डिलीवरी और पार्चुरेशन, वहाँ तक की स्टडी के एक एक फेज की स्टडी को इट कैन बी हम एम्ब्रियोलॉजी में कंसिडर करते हैं. ओके, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके फर्टिलाइज एग के बाद फीटस के बाद जब तक उसकी डिलीवरी ना हो तब तक की पूरी जो कोई घटना है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे. द डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज कॉल्ड द ऑन्टोजेनी. ओके, मतलब डेवलपमेंटल हिस्ट्री सेम, इट विल बी टर्म एज ऑन्टोजेनी. द इवोल्यूशनरी मतलब उत्क्रांति, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन अदर हैंड इज कॉल्ड द फाइलोजेनी. ओके, मतलब जो उत्क्रांतिवाद, उस उत्क्रांति मतलब डेवलपमेंट किस तरह से हुआ उसको हम बोलेंगे फाइलोजेनी. ओके, हियर यू कैन सी डेवलपमेंटल एनाटॉमी. यहाँ पे एक प्रीनेटल वर्ड था, दैट इज न्यू फॉर यू. मतलब प्रीनेटल और पोस्टनेटल. प्रीनेटल बिफोर बर्थ, पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ. ओके, स्टडी ऑफ द फर्टिलाइज एग टू डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट फ्रॉम फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोलॉजी. ओके, फर्टिलाइज एग से लेके फर्टिलाइज आफ्टर डिलीवरी, अप टू डिलीवरी. यहाँ पे उन्होंने अप टू एडल्ट लिखा है. हिस्टोलॉजी. नाउ रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मतलब ऐसा 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ही इज आस्किंग रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, सेल, टिश्यू, ऑर्गन विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप. मतलब कि एग्जाम्पल हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर, स्प्लीन, लंग, स्टमक एट्सेट्रा. मतलब कि सपोज लंग का कैंसर है तो बायोप्सी ऑफ मतलब लंग के सेल की बायोप्सी लेते हैं और फिर वो माइक्रोस्कोप और वेरियस टाइप के टेस्ट करते हैं. फिर उनको पता चलता है कि इज इट कार्सिनोजेनिक और नॉट. ओके, वंस अगेन कि लंग कैंसर है तो उसकी सेल की बायोप्सी लेते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप वेरियस प्रोसीजर और टेस्ट करते हैं कि इज इट कार्सिनोजेनिक और नॉट. और फिर वो डिटेक्ट करते हैं कि भाई यस इज इट कैंसरस और कार्सिनोजेनिक और नॉट. ओके, नाउ रिगार्डिंग सो हिस्टोलॉजी is one of the important branch to diagnose. Now regarding surface anatomy or topographic anatomy. Okay, surface anatomy और topographic anatomy. Surface मतलब कि कोई भी एक surface, body of the surface is the study of deeper part of the body in relation to the skin surface. It is helpful in clinical practice and surgical operation. मतलब कि clinical practice and surgical operation. सरफेस एनाटॉमी मतलब जो डीपर स्ट्रक्चर है वो हम सुपरफिशियली फील करते हैं. इट इज़ कंसिडर एज अ सरफेस एनाटॉमी. सपोज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, टिबियल टिबियोसिटी, मैकबर्निस पॉइंट. मतलब कि आपको अपेंडिसेक्टॉमी करना है तो आपको मैकबर्निस पॉइंट पता होना चाहिए, उसके डीपर स्ट्रक्चर में अपेंडिक्स रहता है इसके लिए. सेम इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, आपको एनेस्थीसिया देना हो तो आपको L3 L4 की सरफेस एनाटॉमी पता रहनी चाहिए. नाउ so it is the important surface anatomy. Now regarding radiography and imaging anatomy is the study of bones and deeper organs by plane and contrast radiography, by ultrasound and computerized tomographic CT scans. Okay, here CT scan machine, X-ray की image मैंने नहीं डाली है because it is very common. So radiographic and imaging anatomy is the study of bones and deeper organs by plane and contrast radiography, by ultrasound and computerized
tomographic CT scans. Okay. Now comparative anatomy. कंपेरिजन मतलब एक की कंपेरिजन दूसरे के साथ करना है. कंपेरेटिव एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ द अदर एनिमल टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन द फॉर्म, structure and function, morphology of the different parts of the human body. Okay, study of anatomy of the other animals to explain changes in the form, structure and function of different parts of the human body. Here you can see diagram of the comparative anatomy. मतलब कि as we know we are monkeys are the ancestor of us. So मतलब कि हमारी comparative anatomy उनके साथ के hip bone etc. मतलब कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी कितनी मिलती रहती है. ओके, सो इट विल बी हेल्पफुल कंपैरेटिव एनाटॉमी. और कंपैरेटिव एनाटॉमी से वो भी पता चल सकता है हमारी इवोल्यूटरी हिस्ट्री, इवोल्यूशन हिस्ट्री भी पता चल सकती है, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री भी पता चल सकती है. 8th one is physical anthropology. Okay, physical anthropology deals with the external features and measurement of the different races and groups of the people and with the study of the prehistoric remains. Okay, क्या कहना चाहता है? Deals with the external features and measurement of the different races and groups of the peoples and with the study of the prehistoric remains. Anthropology can be considered in the Brahman side of Ayurveda. Okay, मतलब के different races and group मतलब कि Americans are generally they are strong and taller than other. Okay, इंडियंस से उनकी हाइट, बॉडी और स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा ही रहती है. ओके, सो it can be this study can be considered in the physical anthropology. Same physical anthropology can be also considered in the evolution. मतलब कि उसका origin, evolution history, phylogenetic history. Okay, it will be considered in the physical anthropology. Okay, आप यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से, कि मतलब कि कोई भी एक ग्रुप रेसेस, कोई भी एक जाति समुदाय के एक ग्रुप की मतलब कि उनके जीन के हिसाब से उनकी हाइट, बॉडी एट्सेट्रा, टॉल, इन प्रॉपर वेट एज वेल एज प्रॉपर स्ट्रेंथ और उसका बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर रहता है और हाइटेड एट्सेट्रा रहता है. और कई जगह पे कई रेसेस ऐसा रहते हैं, कई समुदाय ऐसे रहते हैं, उनके कई फैमिली मेम्बर ऐसे रहते हैं कि उनमें एक के बाद एक फैमिली मेम्बर उनके हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर एट्सेट्रा स्मॉल अदरवाइज मीडियम साइज़ के रहते हैं. सो इस तरह की स्टडी भी एंथ्रोपोलॉजी में हो सकती है. ओके, और दूसरा हमारी जो इवोल्यूशन हिस्ट्री है, इट कैन बी स्टडी इन द physical anthropology. Now regarding applied anatomy, important, applied anatomy can be asked for 2 marks. Deals with the application of the anatomical knowledge to the medical and surgical practice. मतलब applied anatomy deals with the application of anatomical knowledge. मतलब कि हमें पूरा anatomical knowledge, proper structure of the body parts है, proper structure as well as surface of the organs, सब कुछ हमें है. मतलब कि suppose example मैकबर्निस पॉइंट पे हमें अपेंडिसाइटिस है तो और हमें अपेंडिसेक्टोमी करना है. ओके, तो हम सपोज़ वो पाल्पेशन वाली इमेज आप याद करोगे तो आप जैसे जैसे फील करते हो और आपको मैकबर्निस पॉइंट पे पेशेंट बताता है कि मुझे यहाँ पे एट द टाइम ऑफ पाल्पेशन देर इज़ मोर टेंडरनेस और वहाँ पे उसको पेन जाता है, तो सो यू आर डायग्नोसिंग दैट ही मे बी सफरिंग फ्रॉम अपेंडिसाइटिस. ओके, सो हमारा जो एनाटॉमिकल नॉलेज था हमने वहाँ पे अप्लाई किया कि यहाँ पे मैकबर्निस पॉइंट पे उसको दर्द हो रहा है, टेंडरनेस है, सो ही मे बी सफरिंग फ्रॉम द अपेंडिसाइटिस. ओके, और अब हमें अपेंडिसाइटिस है, इन्फेक्शियस कंडीशन है, तो हमें उसको रिमूव करना है, अपेंडिसेक्टोमी करना है. तो हम क्या करेंगे, मैकबर्निस पॉइंट पे हम इंसिजन देंगे. सो मैकबर्निस पॉइंट के लिए भी हमें अगेन हमारी एनाटॉमिकल नॉलेज हम यूज़ कर रहे हैं. सो इट विल बी हेल्प इन द
surgical practice also. Okay, in the appendectomy. Now experimental anatomy मतलब कि कोई भी एक आप एक्सपेरिमेंट रिसर्च कर सकते हो किसी भी ऑर्गन, किसी भी जॉइंट एट्सेट्रा पे. इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, किसी भी ऑर्गन पे, किसी भी कोई आर्टरी, वेसल्स, नर्व्स, इसका कोर्स या फिर जॉइंट्स, उसके काइनेमेटिक्स एट्सेट्रा पे आप रिसर्च कर सकते हो. ओके, एक्सपेरिमेंटल स्टडी. Genetic deals with the study of the information present in the chromosome. Okay, deals with the study of the information present in the chromosome. Genetic study. Pathological anatomy, it is similar to the histology. Okay, याद रखना आप. Pathological anatomy and cytology refers to the medical specialty that studies tissue, cell and their abnormalities in order to contribute to the diagnosis of the disease, notably cancers. Okay, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी मतलब कि साइटोलॉजी, सेल की स्टडी, वो डिफरेंट प्रोसीजर से वो स्टडी करते हैं टू डिटेक्ट एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी, ल्यूकेमिया, कैंसरस कंडीशन एट्सेट्रा. ओके, इट अलाउज द एक्सेक्ट टाइप ऑफ द कंडीशन टू बी असेस इन ऑर्डर टू मेक द मोस्ट इफेक्टिव थेरापेटिक डिसीजन. मतलब कि ड्यू टू द ब्रांच ऑफ द पैथोलॉजिकल एनाटॉमी हमें कोई भी मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब एक ही पेशेंट को 3-4 सिम्टम्स है, फीवर विथ चिल्स, तो उसमें यूटीआई भी हो सकता है, एब्सेस भी हो सकता है और मलेरिया भी हो सकता है. मतलब कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस तरह से रहते हैं. तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें रूल आउट करना रहता है कि यही है, तो उसमें पैथोलॉजिकल एनाटॉमी विल बी मोस्ट हेल्पफुल to detect the proper or to rule out the proper diagnosis. Okay, so it was regarding anatomy, branches of the anatomy. First we have seen cadaveric, then embryology, living anatomy, then histology, pathological, genetic, experimental, applied, physical anthropology, comparative, etc. Okay, now जस्ट आपको इतना याद रखना है कि लोकोमोटर सिस्टम इंक्लूड्स ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी एंड मायोलॉजी. ओके, लोकोमोटर सिस्टम में क्या क्या आता है? ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी एंड मायोलॉजी. द टर्म स्पेंक्नोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द विसरल ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम. मतलब कि विसरल ऑर्गन्स. स्पेंक्नोलॉजी डील्स विद द study of the visceral organ. Okay, now which type of question can be asked for 10 marks? Write the definition and explain the branches of the anatomy. मतलब कि anatomy की आपको definition लिखनी है और यहाँ तक जो आप हमने बात की branches of the anatomy और इसका importance etc. you have to write in detail for 10 marks. Okay, for 5 marks again describe the branches of the anatomy. For 2 marks, definition of anatomy. What is gross anatomy, which can be seen by naked eye and it can be studied by the region. Microscopic, again same. Systemic, regional anatomy. Pathological anatomy, that we have seen at the end. What is applied anatomy? Comparative anatomy. Okay, so this type of the question can be asked for 2 marks. Thank you everyone. If you have any doubt, you can comment. Okay, thank you everyone.